Hello students and welcome to English class Math Vision Aviraj Girls School. Today we are going to start with the topic simple future tense. So in the previous videos we have already discussed about the present and past tense, and now today we are going to start with simple future tense. So first of all, what is the rule of forming sentences in simple future tense? Let's first look at the rules. So we have affirmative sentence, negative, interrogative and negative interrogative. So what is the rule of forming a sentence in simple future tense? Affirmative sentence. It is subject plus will or shall plus first form of verb plus object. Okay. Now how to form a negative sentence? हम लोग helping verb के बाद क्या लगाएंगे? Not. Okay. So the sentence becomes subject plus will or shall plus not plus first form of verb plus object. And how do we form an interrogative sentence? Will shall को हम ले जाएंगे at the beginning of the sentence. So it becomes will or shall plus subject plus first form of verb plus object. Question mark. Okay. Now how to convert it into negative interrogative? Again there are two ways. First, will or shall plus subject plus not plus first form of verb plus object. This is the first way, and the second one is to make a short form of will not or shall not. So what is the short form of will not? Won't. And shall not? Shan't. Okay, plus subject plus first form of verb plus object. So these are the two ways of forming a negative interrogative sentence in simple future tense. Now what is negative interrogative? When a question is asked and it is a negative question, right? जिसमें कि not लगा होता है. Okay? A question in which no or not is used, उसको बोलते हैं negative interrogative sentence. Okay? Now, where to use will and where to use shall? This is a little confusing for you, but I'll make it very very clear today. Will कहाँ पे use करना है? Shall कहाँ पे use करना है? According to general grammatical rule, जो जनरल हमारे ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या पढ़ाया जाता था छोटी क्लासेस में? दैट आई और बी के साथ हम शैल लगाते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ, एंड विल इज यूज्ड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन. ये पढ़ा था आपने जूनियर क्लासेस में कि आई और बी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल लगाते हैं. बट देयर इज अ स्पेसिफिक रूल फॉर दिस, एंड आई लेट यू नो दिस रूल टुडे. ना दो टाइप के सेंटेंसेस हम लेके चलते हैं यहाँ पे. वन इज नॉर्मल और प्लेन फ्यूचर एक्शंस और सेंटेंसेस. एक मैं बोल रही हूँ नॉर्मल या फिर प्लेन फ्यूचर सेंटेंस, एंड द सेकंड वन इज स्ट्रॉन्ग फ्यूचर sentence. Now we have normal or plain future and strong future sentences. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? Normal और plain future sentences होते हैं simple sentences. Okay? Where no strong emotion is connected to it. जहाँ पे कोई strong emotion उस sentence से connect नहीं हुआ होता. Okay? I'll give you an example and you'll understand it better. जब मैं एग्जाम्पल दूंगी तो आपको अच्छे से समझ आएगा. स्ट्रॉन्ग फ्यूचर सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें हम एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट होता है सेंटेंस में, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल दिस कैन बी अ command. This can be
डिटर्मिनेशन कि नहीं मुझे ये करना ही है, नहीं मैं ऐसा करके ही रहूंगा या रहूंगी, राइट। एंड ड्यूटी, व्हाट इज योर ड्यूटी, आपको अपनी ड्यूटी निभानी है, यू आर वेरी ट्रू टू इट, ओके। सो अगर किसी सेंटेंस में, फ्यूचर सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग फ्यूचर होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग फ्यूचर सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें हम लगाते हैं व्हाट, विल और शैल, ओके। नाउ दिस डिपेंड्स। सबसे पहले नॉर्मल प्लेन फ्यूचर सेंटेंस जो होता है जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग डिस्क्राइब नहीं की होती है, उसमें हम फर्स्ट पर्सन के साथ लगाते हैं शैल, एंड सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के साथ लगाते हैं विल। Is it clear? Clear to everybody? Okay. And if you are expressing a very strong emotion, तो आप क्या लगाएंगे अगर आपको सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर की किसी भी टेंस में सेंटेंस बनाना है और उसमें कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन इन्वॉल्व है, तो आप फर्स्ट पर्सन में लगाएंगे विल, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन शैल, ओके। इसको रिवर्स कर देते हैं, शैल इधर आ जाता है, विल ऊपर चला जाता है, राइट, ओके। सो व्हेन अ सेंटेंस इज नॉर्मल और प्लेन फ्यूचर सेंटेंस, तो हम फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगाते हैं, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ विल लगाते हैं, एंड इफ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन दैट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द सेंटेंस, तो हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट के साथ विल एंड सेकेंड एंड थर्ड के साथ शैल। So I'll give you one example to explain this. Suppose if I say, I will get an A in this exam, okay? And the second sentence is, I shall see you at the station. So these are two sentences. First is I will get an A in this exam. ठीक है, A मतलब A grade, ओके, ऐसे होता है ना, A plus, B plus, these grades. I will get an A in this exam. I shall see you at the station. So what do you think? ये दोनों में से इमोशनल कनेक्ट किस सेंटेंस में है? Which one? First or second? What do you think? I will get an A in this exam. So this is what you are expecting, और इससे आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने क्या किया है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होता है I, तो उसके साथ हमने लगाया है will, because it is a strong future sentence. Clear? And the second sentence यहाँ पे again first person है, but हमने shall लगाया है because it is a normal plain future sentence. Clear? क्योंकि इसके साथ हमारा कोई इमोशन अटैच नहीं है। I shall see you at the station, मैं तुम्हें स्टेशन पे मिलूंगी या मिलूंगा, राइट। सो देयर इज नो इमोशन कनेक्टेड टू दिस सेंटेंस, इसलिए हमने यहाँ पर shall लगाया है, एंड फर्स्ट में इमोशनल कनेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर will लगाया है, ओके। सो होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स सी वेयर एंड व्हेन टू यूज सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस को कब और कहां पर यूज करना है, ओके। सो let's now talk about the use of simple future tense. First one, to say what we think will happen. ठीक है, जब आप सोचते हो कि फ्यूचर में ऐसा होगा, राइट, सबसे पहले जस्ट रिकॉल कि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज किया था, जहाँ पे हैबिचुअल एक्शन होता है, जो चीज प्रेजेंट में ट्रू होती है। सिंपल पास्ट में हमने कहाँ पे यूज किया था सिंपल पास्ट टेंस, जो एक्शन पास्ट में हो चुका है, इट हैज बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट, है ना। सो फ्यूचर का हम यूज सिंपल फ्यूचर टेंस में हम क्या बताएंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू से व्हाट वी एक्सपेक्ट
will happen in future. Okay, कि ऐसा होगा, right? For example, she will perform a fabulous dance in the party. वो पार्टी में एक fabulous dance perform करेगी, ठीक है? So this is the action that will take place in future. The second use is to indicate an instant decision. To indicate an instant decision at the moment of speaking. मतलब when you say that sentence, आपने तभी उस चीज को डिसाइड किया है, right? To indicate an instant decision. जैसे जैसे आप बोल रहे हैं, when you are speaking the sentence, आप साथ साथ ही कोई decision ले रहे हैं. For example, the instant decision that you take, for example, it is a sunny day, comma, we shall have a beach party. क्योंकि अभी सनी डे हो रहा है, क्योंकि अभी सनी डे है, इसलिए हमें बीच पार्टी करना है. सो इट्स अ वेरी इंस्टेंट डिसीजन दैट यू डू. आपको दिख रहा है कि बहुत सनी डे है एंड देन यू टेक अ डिसीजन वेरी इंस्टेंटली. इस केस में हम क्या यूज करते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है? कि हम ऐसा कर लेते हैं, है ना? इंस्टेंट डिसीजन दैट यू टेक. ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज सिंपल फ्यूचर टेंस में हमने क्या देखा रूल में? विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है? लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं वेयर सिंपल फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए हम और भी रूल्स को यूज करते हैं. ओके, जैसे कि इसमें से 2 रूल्स वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड. फर्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. हम कब यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस. फ्यूचर बताने के लिए हम कब यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस? व्हेन एनी एक्शन इज प्री प्लान्ड, है ना? हमने पढ़ा था प्लान्ड एक्शन को बताने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस. लेकिन वो बात कब की हो रही होती है? फ्यूचर की, राइट? प्लान्ड एक्शन मतलब ये होगा, ठीक है तो सिंपल फ्यूचर, बट वी कैन ऑल्सो यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हेन द एक्शन इज प्री प्लान्ड. जब कोई एक्शन प्री प्लान होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल द स्कूल स्टार्ट्स नेक्स्ट मंडे. तो प्री प्लान है कि स्कूल नेक्स्ट मंडे को स्टार्ट होगा, राइट? सो इन सच केसेस वी कैन ऑल्सो यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. नाउ सेकेंड हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ये कहाँ पढ़ा था? इसमें कैसे फ्यूचर टेंस को यूज करते हैं? फॉर वेरी नियर फ्यूचर एक्शंस. ये पढ़ा था हमने कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम नियर फ्यूचर एक्शन के लिए भी यूज करते हैं, राइट? सो इसका रूल क्या होता है सिंपल प्रेजेंट? टेल मी. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस, और इसका होता है इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस
plus about to plus first form of verb. ओके, इसको हम कब यूज करते हैं? द एक्शन दैट इज लाइकली टू हैपन ऑलमोस्ट इमीडिएटली, अभी जस्ट होने वाला है एक्शन, इन द इमीडिएट फ्यूचर. ओके, ये था इन द नियर फ्यूचर, इसको यूज करेंगे फॉर इमीडिएट फ्यूचर. ओके, जो एकदम अभी होने वाला है, फ्यूचर में होगा लेकिन एकदम अभी, राइट. एंड नियर फ्यूचर में हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. इमीडिएट फ्यूचर मतलब जो अभी होने वाला है, वेरी रीसेंट एक्शन दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस. फॉर एग्जांपल, द मैच इज प्लस अबाउट टू end. Okay, so here the match singular, third person singular है, तो हमने is लगाया है because it is singular. ठीक है, then about to and then the first form of verb. The match is about to end. Match खत्म होने वाला है. Okay, so this is going to take place in the immediate future. And the fourth kind is by using going to plus first form of verb. आपने सुना ना, I am going to do this, right? I am going to, you know, plus first form of verb. तो वो कब यूज करते हैं? To express intention for the future event which is likely or almost certain to occur. ठीक है, कोई एक्शन जो कि श्योर है आप कि ये होने वाला है, it's almost certain. You are almost sure about it. ठीक है, आप एकदम उसके बारे में पक्का सोच रखा है आपने कि ये होगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल, we are going to start a new business soon. So you have already planned this, और आपकी तरफ से एकदम पक्का है कि आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, राइट. सो नाउ लेट्स लुक एट दीज रूल्स वंस अगेन. सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं प्लान्ड एक्शन के लिए. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस SES if required. Then we have present continuous tense that is used for near future actions, not immediate future. नियर फ्यूचर जो बहुत पास होने वाले हैं, मतलब कुछ टाइम में होने वाला है कोई एक्शन. Then is plus about to plus first form when any action is going to take place very immediately in the immediate future, मतलब अभी बस होने वाला है बहुत जल्दी. Okay, and going to plus first form when the plan or the action is almost certain. You think that it is almost certain, वो होगा ही होगा. अगर आप ये सोचते हैं तो हम क्या फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं? गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, सो हियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेस इन सिंपल फ्यूचर टेंस. उसके दो यूजेस पढ़े हैं हमने. एंड सिंपल